हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू द सत्या शो। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। क्यों क्यों एक्साइटेड हूँ? क्योंकि आज जो हमारी गेस्ट है, आई आई रियली शी इज एन इंस्पिरेशन फॉर मेनी पीपल। ओके, क्योंकि आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे मौका मिला इनका बुक पब्लिश करने का। सो इनका बुक है ट्रू आई फॉल्स आई, एंड शी इज द ऑथर ऑफ द बुक ट्रू आई फॉल्स आई, एंड हर नेम इज मनवीर कौर आनंद, एंड शी हैज मेनी डायमेंशंस। तो जल्दी से हम उनको बुलाते हैं हमारे इस शो के अंदर। मनवीर, हाउ आर यू? Namaste. I am very good. Thank you so much. I'm really very happy and I welcome you to the show called as the Satya Show. मैं थोड़ा सा आपको इस सत्य शो के बारे में बता देता हूँ कि ये शो क्या है। मैं इस शो के दौरान व्हाट आई ट्राई टू डू, एज आई एम अ सोर्सोलॉजिस्ट, बिकॉज आई बिलीव सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आई बिलीव सोर्स इज द सोर्स ऑफ लव, फॉरगिवनेस, कंपैशन, लाइट। सोर्स इज द सोर्स ऑफ हीलिंग। सोर्स इज द सोर्स ऑफ एवरीथिंग। तो मुझे लगता है, मुझे इसे फ्लो में मिला है कि जब भी हमारी जिंदगी के अंदर कुछ अच्छा होता है, वो इसीलिए होता है क्योंकि हम सोर्स के अलाइनमेंट में रहते हैं। बिकॉज सोर्स हैज गिवन ऑल द रूल्स, लॉज एंड रेगुलेशन सो दैट एवरीथिंग इन दिस एग्जिस्टेंस कैन रिमेन इन बैलेंस। और जब हम सोर्स के इन लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, तो हमें लगता है हमारी जिंदगी खुश होती है। वी एंजॉय लाइफ, वी एंजॉय हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। एंड व्हेन वी मूव आउट ऑफ द अलाइनमेंट, आउट ऑफ द लॉज, एंड तभी हमें लगता है कि हमें ये सारे प्रॉब्लम होने जाते हैं। एंड आई बिलीव वी आर जस्ट नॉट अ फिजिकल बॉडी, वी आर जस्ट नॉट अ मेंटल बॉडी, वी आर जस्ट नॉट what you see as a human being, but we have got various dimensions. We have got physical body, we have got a mind, we have got a soul inside, we have got environment. ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। तो मैंने एक बुक लिखी है सोर्स, यू आर वेल अवेयर ऑफ द बुक। एंड उसके बाद क्या हुआ, आई फेल्ट दैट मुझे इस शोज के दौरान, इस तरह के पॉडकास्ट में, उन लोगों को फीचर करनी चाहिए जो ऐसा काम कर रहे हैं विच इज एक्चुअली दे आर वर्किंग विद द टूल्स ऑफ द सोर्स। So I am taking a lot of interviews of many people, and I'm really excited to take your interview today because I feel that आप एक बहुत बहुत brilliant काम कर रहे हो। आप, I think you're working with the foundations. तो जब as I said, I'm very fortunate to publish your book, और जब आपका बुक मेरे हाथ में आया, so I felt yes, there is something inside। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी एक्सपीरियंसेस हुई हैं वो मैं चाहूंगा कि आप खुद सब बोले इस तरह की चीजें। सो मनवीर, ये इंटरव्यू शुरू करते हैं। सो आई वांट यू दैट यू गिव योर ओन इंट्रोडक्शन। हु आर यू एंड हाउ हैज व्हाट इंस्पायर्ड यू टू कम टू राइट दिस बुक? ओके, ओवर टू यू मनवीर। Thank you so much. And it's a great honor for me to be a part of your show. And definitely, my name is Manveer. I have been born and brought up at Ranchi itself. However, way back in the year 2000, we never had some good colleges or further scope for career. So I went ahead to Bangalore to pursue my bachelor's in pharmacy. And I just realized one thing. I am not a very conventional kind of a person, and definitely I always think out of the box. So then and there also, I started with a sales and a marketing profile in the way 2005. And at that particular point of time, a female being into the field of sales and marketing was considered as a taboo. And then I was like, okay, fine, if I have decided over something, let me stick over to it. So yes, my company was very supportive and I left my company in the year 2010. However, during my journey of 5 years with Dr. Reddy's lab, they considered me to be the top performer across India. And many of the doctors with whom I would interact and the other patients I would interact, they would always say that once we interact with you, we feel a connection. But still, I was very lost. What connection? Or maybe I was too very immature to understand it. Then definitely we all have ups and downs in our life, and definitely I did underwent a divorce process. And then in the year 2011, I relocated myself in Delhi. And while I was in Delhi, I had to restart my career again. And I always felt wish there was some genuine person with whom you can really interact, or maybe someone who could really understand you without judging you. However, we know the society.
the way it is. Everyone is always there to judge you. Everyone feels, oh, the single lady, it's and definitely the fault would be with her itself. But no one knew the hard reality of life. And I never wanted to give explanations to anyone because the pain I was really undergoing, why should I tell it to the world? Although I was surrounded by a lot of people, yet I felt lonely in a crowd. And still, to subside my pain, what I realized when I started working for few of the healthcare companies, and when I was dealing with a lot of patients and a lot of people were coming over to me for their personal advices, they felt better and they started implementing my advices in their personal life. And later on, they came and just they told me, thank you because the life changed. And over a period of time, I got an opportunity to work for an HR company where they wanted me to impart trainings by the grace of Almighty, and as we always say, sources. That's what happened in my life. I got an opportunity to get connected with more than 1,200 girls of a government college, imparted a training session for them, and post my training sessions, more than 800 Haryana girls, they got through campus recruitment and they had the guts to go and tell it to the parents that they don't want to get early in life. They want to make a name for themselves. And today, very proudly, I can say many of those girls are beautiful ladies. They are beautiful wives and very successful corporate ladies. So I feel very proud for it. And during that journey itself, I realized when so many people want to approach, they don't know where and how. Then there is a platform I joined over there and I started with the counselings. And many people, they started approaching me. And that is a particular point of time I felt that people want to be heard. They don't want to be judged. And over a period of time, many of the people, they started asking, are you masters in psychology as well? And that triggered a thought into me. So, if I need to serve, and if my mission and purpose is to help people understand people in a much better way and help them be a part of their journey of success, pain, or happiness, let me do my master's in psychology to understand them much deeper. So, with pure intentions, I did my master's in psychology, and then again, ups and downs of life. And this is how the life is. My parents, they felt really unwell. And that was a particular point of time in my life when I had to really choose between a corporate life and a life where I had to serve my parents. And definitely the value systems which were imbibed within me by my parents was parents first. So I decided to come over and take care of my parents. And at the back of the mind, I always knew we have something called as karma. What we are giving it to the universe, definitely we're going to get it back. Again, with pure intentions, sincerity, and dedications, and without any expectations, I was there with my parents. Unfortunately, I lost my father in 2020 November. And then I had the entire responsibility of my mother over me, and she was undergoing dialysis as well. In the meantime, against sources, as I stated, they wanted to give me direction that if I had decided to stay in Ranchi itself. So I got the opportunity to work for one of the elite schools of Ranchi, where I joined as a school counselor. And I served there for nearly 4 years. And in the meantime, as Almighty always has its plan, I lost my mother in the year 2023. And then I took a break of 1 year. And then I decided if it was my choice to stay in Ranchi and to do something for the youth in Ranchi, then I better stand up for myself. And this is a fact. Until unless we do not stand for our own selves, no one would ever come and stand for us. And then when I started interacting with people and started with my counseling sessions, somewhere or the other, it gave me a meaning and a purpose to my life, and my pain started subsiding somewhere. Listening to others' pain, listening to students where they really wanted to listen, and trying to bridge the gap between the parents and a child. Somewhere I felt the value systems which were imbibed into me by my parents, maybe I'm transmitting ahead. And maybe the future kids would benefit in some form or the other.
So this is how my journey happened, and then by the grace of Almighty, again I have been blessed to work for a school which is called as Chandahat School in Ranchi itself, and have been serving them for more than a year. However, the kind of visibility the school has given, it's not because of the work, but the kind of parent and the student improvement happened, the transformations happened, and even in the lives of teachers, even I feel blessed to be a part of this journey. And in the meantime, my book got published, True I False I. So this has been a small journey of mine, and this is what Manveer is. And yes, if people feel कि counselors are the most happiest people on this earth, yes, we are the most happiest people on this earth. Yes, we all have our ups and downs. However, we become very resilient. We know एक जोक पे अगर हम लोग बार बार नहीं हंस सकते, तो एक दुख के ऊपर क्यों बार बार रोना? उस दुख के ऊपर जाके एक सोल्यूशन क्यों ना ढूंढ लेना? एंड एट टाइम्स उसी दुख को अपने लाइफ का पर्पस और मिशन क्यों नहीं बना लेना बाय हेल्पिंग अदर्स. सो दिस इज मनवीर, योर अनकन्वेंशनल काउंसलर एंड योर राइटर. Yeah, really very nice to hear about how you introduce yourself and how you became an unconventional counselor. Manvir, I just wanted to know about this term. This was a very catchy thing when you first told me about unconventional thing. So why you say that you are an unconventional counselor, and how do you find that why there is a problem with the conventional counselor? I just want to know about it from you. First and the foremost thing, there is no problem with the conventional counselors. However, when I say I'm an unconventional counselor, when anyone approaches to me, I'm always very non-judgmental. Secondly, I don't only listen to what they are speaking, I'm also trying to understand their body language and trying to understand in between the lines what exactly they are trying to convey, and to add furthermore, thanks to our 2 minutes noodles and thanks to a 30 minutes delivery and thanks to instant deliveries, everyone wants instant results and moreover out of the box results. Thanks to AI, thanks to so many other platforms where we can easily get the answers by just typing the questions and getting the answers or the solutions. No, this is not what I believe into. I believe into practical connectivity. I always believe into doable things, and I always believe into providing instant results, so that once any person who's visiting me just goes outside my house or my office space, only says one thing: I feel very positive. Yes, I've got some doable, actionable stuffs. And last but not the least, I am getting a strong willpower and a self-belief that I can also do something in my life. I don't need sympathy. All I need is empathy and a support. A genuine support where I'm not being judged. I always emphasize one thing to everyone. सबसे बड़ा फियर हमारे अंदर है कि लोग क्या बोलेंगे. अरे लोगों को जो बोलना है उनको बोलने दो. अगर हम ये भी सोचने लगे कि लोग क्या बोलेंगे तो फिर लोग करेंगे क्या? सो इट्स ऑलवेज बेटर, जो अपना अंदर का फियर है सबसे पहले बाहर निकालो. एंड दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से बी अनकन्वेंशनल. एंड बिफोर आई से टू अदर्स बी अनकन्वेंशनल, I prove it by saying I'm an unconventional counselor. Wonderful, Manvir, and I think we are getting into it. So tell us that what came to your thought when you were planning to. Okay, let me just show the book first. So this is the book which got published. So this book is called as True I False I. I really love the headline. So how you thought about this book? कैसे आपके जहन में आया कि आपको ये book लिखना है? Just enlighten us on that. Thank you so much, and definitely I would want to share this credit with you 100% because I know you since 2013. And I have seen the way you have brought about transformations into the lives of people, whether it was at Bensap's hospital through your alternative healings, or whether it has been through your book, what you have written, which I've read. And definitely you are masters and rather PhD into astrology.
So definitely, whenever I have a doubt or whenever I'm into some kind of an internal conflict, I always consult you and I always ask, sir, this is my problem and now you better give me a solution to it. And your solutions have been very doable and again something very practical. And you simply do not say anything very superstitious. What you say is with a very scientific logic and a background. So that was always a reason I would always get connected to you. And definitely once a year, I would definitely connect and ask you, sir, इस साल करना क्या है? इस साल की थोड़ा guidance दे दो. What is a do and a don't I should be following or I should be avoiding? And since 3 years you were after me, ki Manveer, when you're doing so much for the society, when you're doing so much for the students, and as per your astro, your horoscope, and your number being number 8, you should ideally be doing something for the people. अपने काउंसलिंग्स को सिर्फ एक काउंसलिंग्स मत बना के रखो, spread it to the mass because not everyone can afford counselings. Even a common person needs solutions. Please, whatever experiences you have of your life, please start writing. आपने एक बार बोला, मैंने सुन के अनसुना करा. दूसरी बार मुझको फिर प्रॉब्लम्स आई, मैंने आपसे पूछा और आपने मुझको यही बोला, मनवीर इससे अच्छी ग्राउंडिंग टेक्निक तो आपके लिए हो ही नहीं सकती. स्टार्ट राइटिंग एंड spread things, information to the mass. It will really help you start dealing with the people. Patients are not the ones who are mentally, physically, or emotionally ill. Patients are the ones who need love, support, and guidance. And ये हमारे medicine से बढ़कर काम करता है. That's what you have always been telling me. And ultimately, last year when you told me very sternly and with a lot of affirmations, and you were very affirmative, मनवीर यू बेटर राइट द बुक. जब तक बुक नहीं लिखोगी तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है. एंड दैट इज समथिंग स्ट्रक मी एट द एंड ऑफ द डे. इफ सर इज टेलिंग मी अगेन एंड अगेन द सेम थिंग, देयर हैज टू बी अ रीजन बिहाइंड इट. एंड दिस इज हाउ आई गॉट लॉस्ट. Then again I connected with you. I'm like, sir, कहाँ से बुक लिखनी स्टार्ट करनी है? And you had just told me one thing, जो भी माइंड में आ रहा है वहां से लिखनी स्टार्ट करो. Don't go by the flow. Whatever's coming, just write it across. And that's what I did. I started writing everything, and being a counselor, definitely I have a lot of information which is always documented to me. All I had to do was take out the things which are very relevant in today's time, the common problems what most of the students, parents, teachers, you and me are facing. कुछ चीज हम लोगों को बोल पाते, कुछ चीज हम लोगों को नहीं बोल पाते. There are so much internal struggles what we are facing, and there was lot more and I really thought about it. अगर ये students, पेरेंट्स, टीचर्स, इंडिविजुअल्स के साथ हो रहा है, जो कि मैं बहुत ही लिमिटेड 0.00001% लोगों को केटर कर रही हूँ, दुनिया में पता नहीं और कितने लोग हैं जो बोल नहीं रहे हैं, एंड इंटरनली दे आर फाइटिंग दोस बैटल्स. So that gave me a big kick. I wrote in a very rough form and then I sent it to you for approval. And ultimately, it was you and your publishing house who gave it a shape. And definitely, no doubt, कई बार rewriting भी करवाई, and I was still okay with it. And definitely, this is how my book turned up. And from the very beginning, as you and I both were very clear, मार्च में बुक लॉन्च होनी है तो होनी है, because I was manifesting the month of March 2026, and I was already visualizing that my book will be launched in the month of March, and it did happen. So definitely sources came together, manifestations, visualizations, self-belief, and if you're doing anything with pure intentions, उसी बीच में एक मेरा वीरा भी आ गया, दिलबीर, who became my right hand and you became my left hand. So मिलके ये book launch हो गई. So this is the journey of my book. Great to hear that, and thank you so much. It was actually मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, it was actually a really great experience, because when I received the script, and there was an argumentation which was happening between me and my editor Shujit Chakravarti. He said, नहीं सत्या ये नहीं, এটা চলবে না. And दादा ये चलेगा, it will happen, because I found that inside these scripts there is a huge big essence which I would like you to tell about the whole book essence of True Life also. But I felt that each chapter is telling something which I can relate. As a father, I can relate.
as a person, I have also faced my younger times, and I have faced my study times, I have faced my school times. I have also like was under the rule of my mother, my parents, and I could relate to it. I said, wow, what Manveer has written, I think these kind of questions, these kind of feeling, these kind of emotional turbulence, actually the people, the younger generation are passing, and probably they are unable to explain it. तो मुझे लगा कि नहीं, ये बुक तो आना ही है, and I argued with him, and finally एक चीज बोला जाता है, my master Elihu also says कि अगर कुछ चीज होना है ना दुनिया के अंदर, तो वो होता है डेफिनेटली। तो जब हमने शुरू की काम करना, तो यस, आई लॉट ऑफ टाइम आई सेड मनवीर यू चेंज दिस देन दैट, एंड आई थॉट कि मनवीर करेगी नहीं, बट थैंक यू मनवीर कि आपने, यू नेवर लेफ्ट इट, एंड यू व्हाट एवर आई सेड यू चेंज्ड इट, एंड आई थिंक अभी जो लोग पढ़ेंगे वो समझ जाएंगे व्हाट हैज कम आउट ऑफ दैट। आई थिंक इट हैज कम एज अ ब्रिलियंट बुक। ओके मनवीर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। अगर आप एक नटशेल में बताना चाहें कि व्हाट दिस बुक स्टैंड्स फॉर, ट्रू आई फॉल्स आई, जबकि मुझे लगता है कि ये ट्रू आई फॉल्स आई सुनते ही एवरीथिंग इज क्लियर। मुझे तो लगता है मेरे लाइफ में जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, समथिंग आई फेस, एंड सडनली आई रीड दिस थिंग, ट्रू आई फॉल्स आई, देन आई नीड टू फाइंड माय ट्रू आई फॉल्स आई। बट what according to you is this true I false I just want to know, and I want you to tell it to my spectators. Over to you. ट्रू आई फॉल्स आई, नाम ही बहुत कुछ बता देता है। सही भी मैं हूं और गलत भी मैं हूं। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो हमारा एक्चुअल फेस है, हम वो दुनिया को नहीं दिखाते हैं, और दुनिया के सामने हम अपने एक फॉल्स इमेज को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले, अगेन कमिंग बैक टू द सेम थिंग जो मैंने कुछ टाइम पहले बोला है, फियर ऑफ पीपल, फियर ऑफ जजमेंट। लोग क्या बोलेंगे? आजकल के टाइम पे लोगों की जजमेंट्स, लोगों के सामने हम प्रोजेक्ट करते हैं कि हम तो एकदम परफेक्ट हैं, जबकि शायद हम लोग अंदर से एकदम खोखले हों। जस्ट बिकॉज वी वांट टू फिट इन दी सो कॉल्ड सोसाइटी, द सो कॉल्ड पैरामीटर्स, और we want to fit into something as per the rules and regulations of others। तो जिसके कारण हम कहीं ना कहीं अपना ट्रू सेल्फ को पीछे छोड़ देते हैं और एक फॉल्स इमेज को आगे लेके चलते हैं। और जब अपने फॉल्स इमेज को आगे लेके चलते हैं, हमेशा उसको एनैक्ट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने ट्रू आई को पीछे छोड़ रहे हैं। एंड एक दिन ऐसा आता है कि जब हम रियलाइज करते हैं कि हाय, हम ये कर क्या रहे हैं, वेयर एम आई एंड वेयर एम आई लॉस्ट। सब कुछ होने के बावजूद भी हमें सुकून क्यों नहीं है? व्हाट इज इट? मैं तो लोगों से सराउंडेड हूं, मगर बात करने के लिए मेरे पास ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके सामने मैं दिल खोल के कुछ बोल सकूं। या फिर टीचर्स के सामने हमेशा हैव बीन द बेस्ट स्टूडेंट्स, बट मैं एक टीचर को नो कैसे बोलूं? अगर मैं नो बोल दूंगा या नो बोल दूंगी तो मेरी रेपुटेशन कम नहीं हो जाएगी सबके सामने? अगर मैं क्लास में आंसर ना कर पाऊं तो मेरे फ्रेंड्स मुझको हंसेंगे या मुझको बोलेंगे, अरे इसको तो कुछ नहीं आता। ऐसा नहीं है। बट देर आर सो मेनी अदर थिंग्स। लोग बोलते हैं सोशल मीडिया से दूर रहो, मगर लोग ये क्यों नहीं समझते हैं कि पहले जो बेसिक नेसेसिटी थी, रोटी कपड़ा और मकान, अब हमारी बेसिक नेसेसिटी हो गई है रोटी कपड़ा मकान के साथ ये मोबाइल फोन, जिसने दुनिया को इतना ज्यादा क्लोज कर दिया है। एंड जब मैं क्लोज बोल रही हूं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि दुनिया ने हमें बंद कर दिया है। अपॉर्चुनिटीज बहुत है हमारे पास, एंड थैंक्स टू द सोशल मीडिया, थैंक्स टू द मोबाइल फोन। बट वही है कि हम लोग इसको किस तरीके से यूज करते हैं। कई बार बच्चे अपने आप को इतना लोनली फील करते हैं, उनको एक सेफ स्पेस चाहिए होता है, तो उनको लगता है हमारे पेरेंट्स तो हमारी बात सुन नहीं रहे हैं, तो वो एक मोबाइल की तरफ आ जाते हैं। तो ये बुक में मैंने बहुत सारी चीजों को एड्रेस करा है जो कि हमें हमारे ट्रू आई से बहुत दूर लेकर जा रही है। तो बस मैंने प्रॉब्लम्स को नहीं लिखा है, बट प्रॉब्लम्स के साथ सॉल्यूशंस भी दिए हैं जो
एक काउंसलर के पर्सपेक्टिव से होने चाहिए, एंड अगेन आई से योर अनकन्वेंशनल काउंसलर की पर्सपेक्टिव से। साथ में वो एक सॉल्यूशंस पेरेंट्स के लिए भी है, सॉल्यूशंस वो टीचर्स के लिए भी हैं, एंड वो सॉल्यूशंस आपके मेरे लिए, हम सबके लिए हैं। मैं बार बार टीचर्स क्यों बोल रही हूँ? इट्स नॉट दैट कि टीचर्स ध्यान नहीं देते बच्चों पे, टीचर्स बच्चों पे बहुत ध्यान देते हैं। हाउएवर टीचर्स भी चाहते हैं कि हमारे क्लास के बच्चे एक्सेल करें, मगर कोई टीचर का पर्सपेक्टिव नहीं समझता है कि टीचर के ऊपर भी तो कितना प्रेशर होता है कि कम टाइम में सिलेबस समझना है, कम टाइम में क्लास के हर एक बच्चे को केटर करना है। क्या वो पॉसिबल है? नहीं है। लेट्स बी वेरी प्रैक्टिकल। एक थियोरेटिकल चीज अपनी होती है, बट प्रैक्टिकल चीजें जो एक टीचर फेस करती है क्लास में, वो उन सबको एड्रेस भी करा है। टीचर्स अपने दिल से चाहती है कि अगर हम स्कूल आ रहे हैं तो हर एक बच्चा हमारा अपना बच्चा है, हम उनको समझें, मगर समझने का उनको टाइम नहीं मिलता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि मार्क्स के बेसिस पे जनरलाइज कमेंट्स पास हो जाते हैं, जिससे कि एक बच्चे का कॉन्फिडेंस हिल जाता है। क्या पता बच्चे को सब कुछ आता था, मगर एग्जाम के समय, टेस्ट के समय वो कुछ और इंटरनल स्ट्रेस से जूझ रहा था, इसके कारण वो लिख नहीं पाया। इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चे के पास नॉलेज नहीं है। तो कई बार एक बच्चे को हमें मार्क्स के अलावा एज ए इंडिविजुअल भी देखना चाहिए। उसी तरीके से अगर घर पे हस्बैंड काफी स्ट्रेस में है और कुछ फाइनेंशियल स्ट्रगल से पार हो रहा है, तो फैमिली मेंबर्स को यही नहीं समझना चाहिए कि वो इंसान ने पैसे कुछ गलत जगहों पे डाल दिए हैं, या लॉजिकली या सेंसिबली बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कुछ रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं। नहीं, वी ऑल हैव अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इज, कोई आए और जो मेरा 777 रूल है, 7 मिनट के लिए नहीं हो सकता तो कम से कम 7 सेकेंड के लिए दिन में 3 बार हक तो कर दो इस इंसान को। इंसान को एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक अपनापन आएगा, और इंसान समझेगा तो सही। हाँ, कुछ भी हो, मेरे पास अपने लोग हैं जो मेरे साथ खड़े हैं। मार्क्स क्या है? आते जाते रहेंगे। पैसे क्या है? आते जाते रहेंगे। पर जो अपने हैं, जेन्युइन है, मुश्किल से आज के टाइम में हमारे पास 2 या 3 है, उससे ज्यादा नहीं है। एटलीस्ट जो है उनके साथ तो कम से कम अपना ट्रू सेल्फ आगे रखो। उनके साथ तो कम से कम कनेक्शंस इतने स्ट्रांग रखो कि पता हो कि कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, हम में से ये सेफ जोन है जहां पे आके हम बात कर सकते हैं। ब्रिलियंट। मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप जो बोल रहे हो, और मुझे लग रहा है मैं आपको और रोकू नहीं, आप बोलते रहो इस चीज के अंदर। बट एनीवे, वी आल्सो हैव ए लिमिटेड टाइम। बट मैं एकदम स्ट्रेट कुछ क्वेश्चंस आपको करना चाहता हूँ। मनवीर, एज ए काउंसलर, यू यू हैव सेड दैट यू मेट मेनी पीपल, लाइक 1200 तो हमारे पास नंबर्स भी है, वी हैव इवन रिटन इन द वेबसाइट कि आपने इतने सारे वर्कशॉप्स किए। व्हाट डू यू थिंक टुडे, जेन एक्स है हमारा, जो जेन जी है, काफी सारी चीजें आज का जनरेशन जो है, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और द मेजर प्रॉब्लम? एक आप ऐसा प्रॉब्लम मेंशन करो जो ये वाली जनरेशन फेस कर रही है। एंड मैं आपसे जानना चाहूंगा स्ट्रेट कि आपके बुक पढ़ने से, ट्रू आई फॉल्स आई पढ़ने से, उसको किस तरह का सोल्यूशन मिलेगा? आई वांट यू टू गिव थ्रो योर लाइट ऑन दिस। ये न्यू जनरेशन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम फेस कर रही है, वो है ट्रस्ट इश्यूज का। एंड व्हेन आई से ट्रस्ट इश्यूज, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग इन द लाइफ। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अगर हम लोग देखें, उनमें कन्फ्लिक्ट्स बहुत ज्यादा हैं। अगर पेरेंट्स साथ हैं तभी भी ट्रस्ट इश्यूज बच्चों में, बच्चे देख रहे हैं जो पेरेंट्स में हैं। अगर बच्चा कुछ करना भी चाहता है, तुरंत पेरेंट्स उनकी पूरी बात सुनते नहीं है, समझते नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम और लैक ऑफ पेशेंस और बिकॉज ऑफ द ओन स्ट्रेस, दे स्नैप डाउन द चाइल्ड। बच्चे की बात रोक देते हैं और कई बार बच्चे को मुंह पे बोल देते हैं जो हम बोल रहे वो करो ना। तो बच्चे को कहीं ना कहीं ये फील होता है, वाई डोंट यू ट्रस्ट मी? क्या आपको मेरे डिसीजंस पे ट्रस्ट नहीं है क्या?
एक बार आज के बच्चों को ट्रस्ट करके तो देखो। जनरलाइज मत करो कि हमारे जमाने में तो ऐसा होता है, तुम क्या कर रहे हो, हम तो ऐसे थे, तुम कैसे हो। नहीं, जो नया ब्लड है, नया जनरेशन है, दे हैव मच बेटर आइडियाज। वो अनकन्वेंशनल तरीके से काम करना चाहता है। वी एज एल्डर्स नीड टू शो देम सम ट्रस्ट। एक बार हम उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर लें, डेफिनेटली वो बात हमारी आराम से सुनेंगे। एक मेजर प्रॉब्लम आज के टाइम पे क्या है कि पेरेंट्स हो, बड़े हो या कोई भी हो, बच्चों को आमने सामने बैठ के बोलते हैं तुमको ऐसा करना है। नहीं, नई जनरेशन के बच्चों को ये नहीं चाहिए। उल्टा नई जनरेशन के बच्चों को चाहिए को बगल में बैठ के शोल्डर पे हाथ रखे और बोले, अच्छा बेटा बताओ तुमको करना क्या है, क्या हम लोग मिलके कर सकते हैं, या तुम करो और बताओ, कहीं पे कोई हेल्प चाहिए, आई एम देयर, आई ट्रस्ट यू, आई ट्रस्ट योर कैपेबिलिटीज, सिमिलरली यू ट्रस्ट अपॉन मी, आई विल बी देयर फॉर यू। सो ट्रस्ट। And I think somewhere you mentioned about the loneliness factor. You wanted to say something on that part. कि आज के even they have so many things. They have got so they are into social media and all. Still, I think somewhere people. You also talked about previously. थोड़ा सा क्या आप इसके अंदर loneliness के बारे में बता सकते हैं? And I really want that you to tell that true I false I पढ़ने के बाद like these two issues जो हो रहे हैं. Do you think that the student will find the answer to the trust issue and an answer to the loneliness issue? I just want you to infer on this. सर जैसे कि आपने अभी पूछा लोनलीनेस एंड ट्रस्ट के बारे में, डेफिनेटली लोनलीनेस एक ऐसी चीज है जो मैंने भी कुछ टाइम पहले भी एड्रेस करा था कि 2011 में व्हेन आई वाज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ ट्रॉमा इन माय लाइफ, ऑल्दो आई वाज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ पीपल, स्टिल आई फेल्ट वेरी लोनली। लगा था कि काश कोई हमारे पास होता जो हमें सुन सकता विदाउट जज करे हुए, बट ऐसा नहीं हुआ। उसी तरीके से आज के टाइम में भी हमारे जो जेंजी बच्चे हैं, न्यू जनरेशन के बच्चे हैं, यूथ हैं, आप हो, मैं हूं, एंड इवन सीनियर सिटीजन्स, हम सबकी बात करें, हम सराउंडेड तो बहुत लोगों के साथ हैं, मगर हम किसी के सामने अपना ट्रू आई तो नहीं रख पा रहे हैं। Hmm. हम डरते हैं कि अगर हम किसी के सामने अगर अपना ट्रू आई रख दें, कहीं वो हमें जज तो नहीं करेगा, कहीं वो हमें छोड़ के तो नहीं चला जाएगा। क्या हम इतने दुखी लग रहे हैं कि एक दुखी इंसान के पास कोई आना नहीं चाहेगा? या फिर हम सोसाइटी में एक अपना डोमिनेंस, एक प्रेजेंस, अपने आप को एक्टिव दिखाने के लिए एक सोशल स्टेटस मेंटेन करने के चक्कर में क्या हम लोगों को एक फॉल्स चेहरा दिखाते आ रहे हैं? और जब फॉल्स चेहरा दिखाते आते हैं तो जितने भी हमारे रिश्ते बन रहे हैं कहीं ना कहीं खोखले हैं। और जब रिश्ते खोखले हों तो क्या हम उनके सामने अपनी दिल की बात कर सकते हैं? नहीं, हमारे अंदर एक खुद का एक शक, खुद का एक फियर रहेगा। हमने तो ये रिश्ते खोखले बनाए हैं, तो ये हमारी बात सुनेंगे कितनी, चार लोगों के बीच गॉसिप कितनी करेंगे। और उस डर से लोगों के बीच होते हुए भी हम लोनली हैं। ऑब्वियसली एक हस्बैंड एंड वाइफ साथ होते हुए भी आज के टाइम लोनली होते हैं और हो रहे हैं, क्योंकि ये जो मोबाइल फोन्स हैं उसने तो पार्टनर का फॉर्म ही ले लिया है। अगर दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो साथ के साथ आर्ग्यू नहीं करते हैं, एक दूसरे को इंस्टाग्राम या फिर कोई भी सोशल मीडिया से कोई रील निकाल के फॉरवर्ड कर देते हैं। ईगो क्लैशेस होते हैं या अपनी स्टेटस पे कुछ खतरनाक चीजें डाल देते हैं। भाई लड़ाई तो दो लोगों के बीच में हुई है, पूरी दुनिया को क्यों बताना? सो लोगों के पास वेंट आउट करने के लिए है ही नहीं, वन ऑन वन कम्युनिकेशन करने से डरते हैं। आज के दिन भी अगर किसी को बोलें कम लेट्स सिट एंड टॉक, तुरंत इंसान के दिमाग में नेगेटिव चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी। और ये मैंने अपने बुक के एक चैप्टर में भी मेंशन करा है, जहां पे रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप्स के बारे में मैंने मेंशन करा है, जहां पे एक फ्रेंड अपने दूसरे फ्रेंड को बोलता है कम लेट्स सिट एंड टॉक फॉर अ व्हाइल, तुरंत दूसरे फ्रेंड के दिमाग में बात आ गई कि हाँ,
मैंने ऐसी गलती क्या कर दी, ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हो गई, और ऐसा क्या हो गया, क्या मेरा फ्रेंड मुझको छोड़ के जाना तो नहीं चाहता है। सो कभी एक पॉजिटिव चीज तो आई नहीं माइंड में, सब नेगेटिव चीजें आने लग गई। उसी तरीके से अगर एक बॉस अपने एम्प्लॉय को बुलाकर बोले, कम लेट्स सिट फॉर अ कप ऑफ कॉफी, तुरंत एम्प्लॉय के दिमाग में बात आने लगता है, कहीं कोई न्यू टास्क तो नहीं मिलने वाला है, कुछ मैंने गड़बड़ी तो नहीं कर दी, या मुझको रिजाइन करने को तो नहीं बोला जाएगा, या कहीं मुझको ट्रांसफर तो नहीं किया जा रहा है। कभी एक पॉजिटिव चीज तो आती नहीं है माइंड में। उसी तरीके से अगर वाइफ ने हस्बैंड को बोला, शाम को जल्दी आना, कुछ बात करनी है, पूरा दिन हस्बैंड इसी बात को लेके सोचता है, घर जाके पता नहीं कौन सा बम फूटने वाला है। और अगर गलती से हस्बैंड ने वाइफ को बोला, शाम को मैं घर जल्दी आऊंगा, बैठ के कुछ बातें करनी है, वाइफ के माइंड में चीजें चलेंगी, पता नहीं मेरे मायके वालों को लेके कुछ बोलना है क्या, या फिर ऐसा हुआ क्या। कभी पॉजिटिव चीजें तो आती ही नहीं है। बट क्या हमने कभी सोचा, अगर सामने से अगर किसी ने बोला, कम लेट्स सिट एंड टॉक फॉर अ वाइल, क्या पता सामने वाले को अपना दिल आपके सामने हल्का करना हो, क्या पता सामने वाले को रिलेशनशिप इंप्रूव करनी हो, क्या पता कोई छोटी सी चीज है अंदर ही अंदर इंसान को परेशान कर रही है, क्या पता वो चीज वो शेयर करके एक सोल्यूशन निकालना चाह रहा हो। क्योंकि अक्सर लड़ाइयाँ लड़ाइयाँ बड़ी बातों को लेकर नहीं होती हैं, लाइफ में छोटी छोटी बातें ही बड़े धमाके लेकर आती है। मगर ये चीज तो हम कभी सोचते नहीं है, इट्स ऑलवेज द नेगेटिव। सो डेफिनेटली आज के टाइम में ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और बच्चे वो चीज हमसे ही सीखते हैं। एज अ वाइफ अगर हम अपने हस्बैंड के फोन को बार बार ओपन करके चेक करते रहें, या अपने बच्चे को बोले कि देखो पापा कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा दिक्कत तो है ना, पापा गए क्या, पापा आए क्या, अरे पापा भी किससे बात कर रहे थे क्या, तो बच्चा क्या सीखेगा, ट्रस्ट की कमी है। उसी तरीके से इफ हस्बैंड इज सुपरवाइजिंग और ट्राइंग टू चेक ओवर द वाइफ, मम्मा ने किससे बात करी, कौन आया था, अगेन दैट्स रॉन्ग। तो बच्चा ये सारी चीजें घर से ही सीखता है, एंड अल्टीमेटली बच्चे के दिमाग में यही चीज रहेगी कि भैया ट्रस्ट नाम की कोई चीज नहीं है, एंड वो प्रैक्टिकली अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंप्लीमेंट करने लगेगा। तभी आए दिन हम बच्चों से सुनते रहते हैं, अरे कल के दिन तो वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड था, बट आज वो मेरा अच्छा फ्रेंड नहीं है, एंड उसको मैंने अपने जितने भी सीक्रेट्स बताए थे, देखो आज उसने जाके सबको बता दिया। वाई, लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर कोई किसी से कोई भी बात किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे शेयर कर रहा है, दैट इज आउट ऑफ शेयर ट्रस्ट, लव, केयर एंड कंसर्न। बिकॉज ऑफ एनी रीजन अगर मनमुटाव हो जाए, वी आर नॉट टुगेदर, देन दुनिया को जाके वो सारी बातें क्यों बोलनी, वाई ब्रेक एनीवन्स ट्रस्ट। So this is something which I strongly follow, adhere to, and definitely ये ट्रस्ट वाला एस्पेक्ट है। आज के टाइम पे अगर हम लोग ले आए ना, चीजें बहुत इंप्रूव हो जाएंगी। कई बार हम लोग अपने इकोसिस्टम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, कई बार जो हमें मैनेज करते हैं हम उन पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, एंड वी स्टार्ट क्वेश्चनिंग देम अननेसेसरली, तभी तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, और फिर वो ईगो क्लैशेस होनी स्टार्ट होती हैं, तभी लोगों के अंदर इंस्टेबिलिटी होती है, मेंटल क्लैशेस होते हैं, फिर इंसान इरिटेट, फ्रस्ट्रेट, एंगर, एंगर वेंट आउट कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, वेंट आउट करेगा तो दो चीजें होंगी, या तो इंसान अपना सब कुछ खो के बैठेगा, या फिर अगर इंसान ने अपना पूरा एंगर गलत तरीके से वेंट आउट कर लिया, तो जिंदगी भर रिग्रेट करेगा कि हमने ये बोला तो बोला क्यों। So you तो think the major problem is the coming from the trust, and then we talked about the issue called as loneliness. So अगर मैं आज के जमाने में loneliness की बात करूं, हर कोई अकेला है. So अगर हम, is there a one-liner solution to this? You think that there's a loneliness and this thing can be changed by something? Can you give us a little
solution from a counselor point of view, since you have met so many people. सो ये लोनलीनेस को कैसे फाइट करें लोग? बिकॉज आज हर कोई मुझे लगता है अकेला है। एक बिजनेसमैन भी शायद अकेला है, एक बहुत कुछ करना चाहता है, एक बच्चा भी अकेला है, पेरेंट्स भी अकेले हैं, इवन टीचर, हर कोई दे सीम्स टू बी वेरी लोनली इन देयर लाइफ। सो व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द सॉल्यूशन टू फाइट दिस लोनलीनेस? That's a wonderful question you've asked me, and तुरंत मुझको एक परसों का काउंसलिंग सेशन याद आ गया. There is a leading businessman of Ranchi itself who approached me and stated, मैं अपने घर पे रहते हुए भी लोनली फील करता हूँ. Obviously at my workplace I have to be very professional, so वहां पे मैं लोगों के सामने अपनी दिल की बात नहीं बोल सकता हूँ. और घर पे अगर मैं बोलने की कोशिश करूं, I have a fear of being judged all the time, या तुरंत I get to hear few statements which hurts me. So is it right or is it wrong? If I have a friend outside जिसके साथ मैं रोज 5 मिनट या 10 मिनट भी बात करता हूं, तो मुझको एक मेंटली सुकून मिलता है. इज इट राइट और रॉन्ग इफ आई ओनली इंटरेक्ट विद दैट पर्सन? एंड इसका एक बहुत सिंपल सोल्यूशन मैंने उनको एक ही चीज दी थी कि देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अ राइट और द रॉन्ग. उस पल पे अगर आपको अपनी फ्रेंड से बात करके 10 मिनट एक सुकून मिलता है, और अगर आपको लगता है यू आर गेटिंग द ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर गेटिंग समवन हु इज ट्रस्टिंग यू, एंड उस 10 मिनट बात करके आप अपने आप को एक सुकून महसूस करते हो, तो ये एब्सोल्युटली राइट है. However, at the end of the day, रात को जब आप सोने जाओ, शीशे में अपने आप को देखो, तो आपको कहीं ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि आपने अपनी वाइफ के ऊपर चीट करा है या उस फ्रेंड के ऊपर चीट करा है. यू आर आंसरेबल ओनली टू योरसेल्फ. अगर आपको लगता है सही है तो सही है, और अगर आपको लगता है सही नहीं है तो नहीं है. सो उसी तरीके से मैं बोलूंगी, हर इंसान के आसपास कोई ना कोई एक ऐसा इंसान होता है. कई बार उन रिश्तों को हम नाम नहीं दे सकते हैं, एज अ ब्रदर सिस्टर, एज अ हस्बैंड वाइफ, एज फ्रेंड्स, एज कोलीग्स, एज एनीवन. हाउएवर, उस पर्सन से अगर 5 मिनट 10 मिनट बात करके सुकून मिलता है, व्हाई नॉट? इनफैक्ट बुक में भी, और कई बार बिना बात करे भी हमें सुकून मिल जाता है जब हम सामने वाले को सिर्फ देख लेते हैं, एंड अंदर ही अंदर हमें रहता है कोई तो है हमारे लिए. बुक में जैसे एक चैप्टर है, स्माइल बिटवीन द स्ट्रेंजर्स. वो बच्ची स्कूल नहीं जाना चाहती थी, मगर जब वो बस में रोज एक बच्चे को देखती थी और रोज दोनों के बीच में स्माइल एक्सचेंज होता था, कहीं ना कहीं बच्ची को एहसास होता था कि हाँ, कोई ना कोई है जो मेरी तरह इस स्थिति से गुजर तो रहा है. एंड कभी उन्होंने बात नहीं करी, बट अनसेड एक बॉन्ड तो बनता था. दोनों एक दूसरे को देखते थे, एक स्माइल पास करते थे, एंड दोनों अपने आप को शांत फील करते थे. सो डेफिनेटली ये जो बुक है ना, बुक में ऐसी कॉमन चीजों को भी एड्रेस किया गया है जो डे टू डे हम झेल रहे हैं मगर हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं. इसमें कुछ सेल्फ असेसमेंट्स भी दिया है. हम छोटे से बच्चों को ABCD पढ़ना सिखा देते हैं, 1 2 3 4 सिखा देते हैं, क ख ग घ सिखा देते हैं, मगर छोटे से हमने कभी बच्चों को इमोशंस को नेम देना कभी नहीं सिखाया. और बच्चों को हम सिखाएंगे कैसे अगर हम इसको खुद नहीं जानते हैं? तो कई बार मैंने लोगों को देखा है, जब वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, वो अपनी खुशी नहीं संभाल पाते हैं, और वो इतना हाइपर हो जाते हैं कि कब वो एक थिन लाइन क्रॉस कर देते हैं कि खुशी कब उनकी गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है, पल भर में पता भी नहीं चलता, जस्ट बिकॉज दे बिकम सो वेरी हाइपर. उसी तरीके से कई लोग
गुस्सा करने से पहले बताते हैं कि हमें गुस्सा आ रहा है, बट ये नहीं बोलते हमें गुस्सा आ रहा है। डेफिनेटली वो बोलते हैं मत करो, मत करो, मत करो। एक प्रेशर कुकर ही हमारे किचन में है। सीटी बजने से पहले 2-3 बार इंडिकेशन देता है, छोटी छोटी सीटियां बजा के, कि देखो प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, एंड फटाक से सीटी बज जाती है। उसी तरीके से हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे अंदर भी हम भी सिग्नल्स देते हैं। अगर कोई हमारा कंटिन्यूस सिग्नल नहीं समझ पा रहा है, जब हमारा प्रेशर लेवल हाई होगा तो हम भी फटेंगे, हम भी अपना एग्रेसिव वाला गुस्सा दिखाएंगे। तो गुस्सा एट टाइम्स इज गुड, बट एट टाइम्स गुस्सा हमारे लिए हार्मफुल है। और मैं ये कभी नहीं बोलूंगी अपने गुस्से को सप्रेस करके रखो, रादर आई विल से अपने गुस्से को चैनलाइज करके रखो। और जब हमारे पास कोई एक अपना हो जिससे हम खुल के अपनी सारी बातें रख सके। लाइफ में हर इंसान को आज की डेट पे एक जेन्युइन रिश्ता रखना ही होगा, तभी हम अपने आप को कभी लोनली फील नहीं करेंगे। और किसी को बात करते हुए डर लगता है, कोई बात नहीं, स्टार्ट राइटिंग। राइटिंग ऑल्सो हेल्प्स। अगर लिखने का मन नहीं है, रिकॉर्ड करो और सामने वाले को भेज दो, सामने वाला सुन के वापस रिकॉर्डिंग में भेज देगा। चलो वो भी नहीं करना है, कोई बात नहीं, घर पे एक पेट ले आओ, उसके साथ भी दिन भर बैठ के गप मारो, बात करो, यू विल फील मच बेटर। एंड डेफिनेटली आज के टाइम पे जो पेरेंट्स इतने बिजी हैं, घर पे एक पेट ले आओ। आई एम टेलिंग यू, जो बच्चों को हम डिसिप्लिन नहीं सिखा पा रहे हैं ना, घर पे एक पेट डॉग आएगा, तुरंत उनको डिसिप्लिन सिखा देगा। जो एब्सोल्युटली। वैल्यू सिस्टम है कंपैशन एम्पैथी का, एज पेरेंट्स हम टाइम नहीं दे पा रहे, हम नहीं सिखा पा रहे हैं, वो पेट डॉग सिखा देगा। एक टाइम टेबल कैसे बना के फॉलो करना है, हमारे घर पे एक पेट डॉग आएगा, वो सिखा देगा। एंड दिस आई एम टॉकिंग 100% आउट ऑफ माई शेयर एक्सपीरियंस। 1 साल में मेरी लाइफ नहीं से बहुत कुछ में बदल गई है। आई एम नाउ मच मोर डिसिप्लिन पर्सन, I have a proper timetable, and I have seen a lot of positive changes happening within me as well. ग्रेट। मनवीर, आपने अपने बुक के बारे में यू मेंशन्ड अबाउट द फोर मिरर्स। आई वांट यू टू टॉक मोर अबाउट इट टू माय ऑडियंस अबाउट दिस फोर मिरर्स एंड व्हाट आर दिस फोर मिरर्स एंड हाउ कैन दिस फोर मिरर्स make one realize and come out of many issues they are facing in life. When I talk about the 4 mirrors in my book, first and the foremost is our own selves. If you're not able to connect with our own selves, then हम बहुत बड़ा धोखा कर रहे हैं। किसी और के साथ धोखा करने से पहले हम अपने आप से धोखा कर रहे हैं। बिकॉज जब तक हमें खुद को क्लैरिटी नहीं मिलेगी कि हमें चाहिए क्या, हम लोगों के सामने कैसे रख सकते हैं क्लियरली कि हमें उनसे क्या चाहिए। सेकेंड इज, हर पर्सन की लाइफ में एनवायरमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। एंड जब हम एनवायरमेंट की बात करते हैं, इट इज द फैमिली विच क्रिएट्स द इमीडिएट एनवायरमेंट। एंड जब हम फैमिली की बात करें, ऑब्वियसली नोकझोंक तो होती है, हाउएवर मोर देन द वर्ड्स, व्हाट रियली मैटर्स इज आप सामने वाले को कैसा फील करवाते हो। थर्ड पिलर की तरफ हम बात देखें तो वो क्या है, वो ये है कि हमारा रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप आज के तौर पे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमें फ्रीडम तो चाहिए, मगर फ्रीडम के साथ हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेनी है। तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर ये पूरी बुक निर्धारित है। एंड इसके ऊपर हम देखेंगे तो आई कवर्ड द इंटरनल स्टॉर्म, जो फैमिली में जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं उन सबको कवर करा है। रिलेशनशिप के प्रति हमारे पेरेंट्स का क्या नजरिया रहता है, हमारा क्या नजरिया रहता है, उसको उसमें मेंशन करा है। और जब हम बोल रहे हैं हमारा, हमारे की मतलब मैं बच्चों की तरफ से बोल रही हूँ, राइट। तो हमारा क्या नजरिया रहता है, एक
फ्रेंडशिप पे हमारा क्या नजरिया है और बड़ों का क्या नजरिया है, एंड हाउ वी कैन मिनिमाइज इट, हाउ वी कैन इम्प्रूव इट। बच्चों को दाल रोटी भी चाहिए मगर साथ में पिज्जा भी चाहिए। पेरेंट्स कैसे इसको बैलेंस आउट करें? डाइनिंग टेबल पे क्या अवॉइड करें? सबको पता है कि गैजेट्स नहीं यूज करने हैं। मैं गैजेट्स की बात तो कर ही नहीं रही हूँ। गैजेट से पहले आता है इमोशनल कनेक्ट। हम कैसे इमोशनली कनेक्ट कर रहे हैं? जब हम डिनर टाइम या लंच टाइम बोलते हैं, वो सिर्फ एक खाना खाने वाली बात नहीं होती है। उस समय हम अपने इमोशंस को भी कहीं ना कहीं फीड कर रहे होते हैं। माँ का कहना, खाना निकाल दिया है टेबल पे, आओ खा लो, वो माँ सिर्फ एक खाने की बात नहीं बोल रही है। साथ में माँ अंदर ही अंदर बच्चे को ये बात भी बोल रही है, बेटा आई केयर फॉर यू। ठीक टाइम पे खाना नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तुम्हारा ठीक होना मेरे लिए मैटर करता है, बाकी चीजें तो लाइफ में होती रहेंगी। So we have to understand the emotions behind what they are saying. And when I say what they are saying, it's not only the parents, it's not only the children, it's from the both the sides. एंड जब मैं बार बार बोलती हूँ बच्चा या बड़ा, इसका मतलब यही नहीं है आप और मैं इंडिविजुअल्स इनसे नहीं झेल रहे हैं, हम भी झेल रहे हैं। कभी कभी हम बच्चे बन जाते हैं अपने लोगों के सामने, और कई बार वो बच्चे बन जाते हैं हमारे सामने। So it is how we can deal with the scenarios and situations. Great. So, Manmeet, अभी मैं directly we are just coming towards the end of this interview because I really would love that मैं इनकी जो आपने बहुत सारी चीजें लिखी हैं, you have touched many dimensions, और मैं चाहूंगा कि मैं कुछ सीरीज ऑफ आपके साथ ऐसे टॉक्स करूं जिसमें मैं ना एक एक इंडिविजुअल टॉपिक्स के ऊपर आई वांट पीपल टू नो, बिकॉज इस बुक के अंदर मुझे लगता है बहुत सारी चीजें हैं। मतलब आप जैसे अभी बोल भी रहे हो, सो व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑन समथिंग यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन इनसाइड इट, की तो आपको लगता है कि आप एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक में चले जा रहे हो, और वहां पे क्या हो रहा है कि मुझे लगता है मैं उसके ऊपर भी काफी सारी चीजें सुनूं और पता लगाऊं। तो मुझे नहीं लगता एक इंटरव्यू काफी होगा या दो इंटरव्यू काफी होगा, बट I'll keep trying to have because I think you have got lot of information and you have got lot of experience और आपके पास lot of case studies है जो कि आज हो रहा है। आज के जमाने में थिंग्स आर हैपनिंग एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू कि हम उन रूट कॉजेस को पकड़े, उन एक्सपीरियंसेस को ले, उन केस स्टडीज को समझे। तो मैं आपके साथ सीरीज ऑफ ऐसे कन्वर्सेशंस करना चाहूंगा जिससे हम कुछ टॉपिक्स, कुछ मेजर टॉपिक्स जो मेरे को पसंद है, जो आपको पसंद है, जो आज के जमाने में हो रहा है, और उनके ऊपर हम चर्चा करेंगे कुछ नेक्स्ट इंटरव्यूज में। बट आज के इस इंटरव्यू में, आज के इस कन्वर्सेशन में मैं आपसे ना तीन चीजें जानना चाहूंगा। एक एक जो स्टूडेंट है, यंग पर्सन है, वो आप, इट शुड कम फ्रॉम योर थिंग, योर एक्सपीरियंस, व्हाई शुड दैट पर्सन रीड दिस, why true I false है, why should a parent read this true I false है, and why should a teacher read this true I false है? I just wanted to know from your perspective as an author, as a mother of this book. Yeah, tell me. सबसे पहले मैं चाहूंगी कि आज की डेट पे हर एक बच्चा ये बुक पढ़े, क्योंकि हर एक बच्चा अपने अंदर बहुत कुछ दबा के रखा है, वो जो सबके सामने नहीं ला पाता है, डरता है। तो इस बुक में वो सारी चीजें एड्रेस की गई हैं। एंड डेफिनेटली हर एक बच्चा अपने पेरेंट को नहीं बोल सकता है, आओ मुझको काउंसलर के पास जाना है, और तुरंत पेरेंट्स बोल देते हैं कौन सी मेंटल प्रॉब्लम हो गई है, ऐसी कौन सी दिक्कत आ गई है, बिकॉज स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ टैबू एसोसिएटेड। हाउएवर पेरेंट्स दे डू नॉट अंडरस्टैंड, या पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं कि अगर बच्चा बोल रहा है काउंसलर के पास जाने का, इसका मतलब है पेरेंट एंड चाइल्ड रिलेशनशिप सबसे पहले इंप्रूव करना है। और दूसरा, चाइल्ड चाहता है कि कोई उसको सुने और सोल्यूशंस दे। इस बुक में बहुत सोल्यूशंस है बच्चे के लिए। जब तक वो बच्चा खुल के पेरेंट्स से बात नहीं कर पाएगा, तब तक एटलीस्ट इस बुक में वो सारे सोल्यूशंस हैं जिसको वो फॉलो तो कर पाएगा। और क्या पता पढ़ते पढ़ते एक बच्चे के अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन आ जाए। जो मेरा सेक्शन 4 है,
जहां पे मैंने मेंशन करा है हमारे बच्चों को फ्रीडम तो चाहिए मगर घर की कन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहिए। क्या पता सेक्शन 4 पढ़ते पढ़ते बच्चों के मन के अंदर भी एक सोल्यूशन आ जाए कि अरे मम्मी पापा का ये इंटेंशन नहीं था बोलने का। क्या पता उससे उनके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो जाएं। क्या पता बच्चे जो फ्रेंडशिप्स को लेकर आजकल इतने इनसिक्योर है, हमारा जो सेगमेंट 3 है, तो बच्चा वहां से इंप्रूव कर जाए कुछ। सेक्शन 1 इंटरनल स्ट्रॉम जो बच्चा मार्क्स को लेके इतना परेशान रहता है कि अपने अंदर की हलचल को लेके या चार लोगों के बीच अपने आप को रखने से डरता है, या पूरा प्रोजेक्ट का टेंशन ही अपने सर पे ले लेता है और बाकी के चार लोग जो आराम से बैठ के सक्सेस का मजा लेते हैं, क्या पता ये बच्चा उनको एक नो बोलना स्टार्ट कर दे, अपने लिए स्टैंड लेना स्टार्ट कर दे। क्या पता जो बच्चा हमेशा क्लास का टॉपर है उसके अंदर भी कितनी ज्यादा हलचल है, क्या पता वो उस चीज को एड्रेस कर पाए। हम रोज सुबह उठ के अपने फोन को रिचार्ज तो कर लेते हैं, बैट फोन को चार्जर पे लगा देते कि चलो 100% बैटरी होगी ताकि दिन भर हमारा फोन ठीक से तो चले। बट टू बी नंबर वन, हम अपने आप को इतना वर्कआउट कर देते हैं, हम भी तो मशीन है कहीं ना कहीं। इवन वी वांट चार्जिंग। क्या हम अपने आप को चार्ज करने के लिए दिन में आधा घंटा 1 घंटा दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये सब शायद बच्चा जब ये बुक में पढ़ेगा तो समझेगा कि भैया इफ यू आर टेकिंग अ ब्रेक, गिल्ट फ्री ब्रेक है, टेंशन मत लो। जब ये पेरेंट्स ये बुक पढ़ेंगे एटलीस्ट दे विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यू जनरेशन। एंड जो बार बार हम लोग बोलते आते हैं ना, हमारे टाइम पे हमारा जनरेशन, शर्मा जी का प्रोजेक्ट तो उनका प्रोजेक्ट, कम से कम वो तो बोलना बंद कर देंगे। Accept your child the way your child is. Your child is full of opportunities, potentials, and most importantly, आपका बच्चा आपके लिए दुनिया का सबसे बड़ा गिफ्ट है। कल के दिन आपका ही बच्चा आपके लिए खड़ा रहेगा, कोई और नहीं आएगा। प्रोवाइडेड स्टार्टिंग से ही आप अपने बच्चों के साथ एक ट्रस्ट बना के रखो, एक प्यार बना के रखो, उनको सुनो तो सही, तभी तो वो बुढ़ापे में आपको सुनेंगे। अगर एज पेरेंट्स अभी आपने ये बुक पढ़ ली, आई अश्योर यू आपका बुढ़ापा काफी सुकून वाला जाएगा। एंड डेफिनेटली फॉर टीचर्स आर डूइंग अ वंडरफुल जॉब। हाउएवर दे हैव अ लॉट ऑफ प्रेशर, सिलेबस कंप्लीट करने का बच्चे की परफॉर्मेंस को लेके, क्लास डिसिप्लिन को लेके, और पता नहीं और दुनिया भर की क्या क्या एक्टिविटीज को लेके है। मैं टीचर्स को बस एक ही बात बोलूंगी, रीड दिस बुक। आप अपने हर एक बच्चे को क्लास में बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से जान लोगे, क्योंकि हर क्लास में वो एक रोहन जरूर होता है, वो एक आरुषि जरूर होगी, वो एक अनन्या, वो एक आरना, वो एक मनवीर, तो वो एक सत्यजीत जरूर है। वेरी वेल सेड मनवीर, एंड आई थिंक बहुत कुछ समझ में आ रहा है एंड बहुत कुछ समझना जरूरी है अभी। एंड मैं एज आई प्रॉमिस्ड आई विल कीप डूइंग फर्दर कन्वर्सेशंस विद यू सो दैट we can target the specific issues that are happening at the moment in this society and among the foundations of our society, that is the kids. और मनवीर, आप ये मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि ये बुक आपको मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन नीचे दे दूंगा। दिस बुक इज अवेलेबल एट द मोमेंट इन मनवीर ओन वेबसाइट, दैट इज मनवीर और anand.com। प्लस दिस बुक इज ऑल्सो अवेलेबल इन फ्लिपकार्ट एंड प्लस ये फिजिकली बहुत सारे जगह पे अवेलेबल है। अगर आप वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे भी आपको मिल जाएगा। बट अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहेंगे तो सबसे बेस्ट मेथड है, वी हैव एट द मोमेंट द फास्टेस्ट कुरियर सर्विस, बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। और अगर सेकेंडरी ऑप्शन इज द फ्लिपकार्ट, अमेजोन में हो सकता है थोड़ी दिन के अंदर है, बिकॉज अमेजोन के कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं विच वी आर ट्राइंग टू सॉल्व अबाउट, एंड बाय द टाइम मे बी यू आर रीडिंग दिस मूवी शायद सॉल्व हो जाए। बट I definitely request everyone who is listening to this conversation, please go to this website and please to the website Manvir for Anil.
स्टडी फर्दर अबाउट द बुक, उसके अंदर क्या क्या कंटेंट लिखी हुई है, एंड आई एम वेरी श्योर अबाउट इट कि अगर हमने इस चीज को पब्लिश की कि आई आई डेफिनेटली नो दैट हर एक इंसान आज कहीं ना कहीं कोई एक प्रॉब्लम में है, कोई एक मेंटल इशू में है, कोई एक इमोशनल इश्यूज में है। और मुझे 100% आई एम श्योर अबाउट इट, आप जब इस बुक को पढ़ना शुरू करेंगे आपको कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब मिलेगा। मुझे मिला, मुझे अपने बच्चे के लिए, मुझे मेरी बेटी के लिए मिला है, मुझे मेरे रिलेशनशिप में मिला है, मुझे अपने बिजनेस में मिला है, मुझे अपनी मीडिया सॉल्यूशंस में मुझे मिला है। इवन जब मैं प्रेस क्लब ऑफ रांची के अंदर मैं इस बुक के बारे में जो वहाँ के जर्नलिस्ट है, जर्नलिस्ट थे, उन्होंने मुझे जब पूछा कि सर ये बुक क्या बच्चों के लिए है, हमारे लिए है, मैंने उनको चैप्टर खोल के दिखा दिया, नहीं इस बुक के अंदर आपके लिए भी सोल्यूशन है। दे वर सो एक्साइटेड अबाउट दिस। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बुक के अंदर आप लोग को पता नहीं शायद, कन्वर्सेशन में सारी चीजें, एक घंटे का कन्वर्सेशन इज नॉट एनफ टू टू अंडरस्टैंड कि इसके अंदर मनवीर कौर आनंद ने अपनी पूरी होल लाइफ की, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी पेरेंट से जो उनको वैल्यू मिला है, जो वो डिफरेंट बच्चों से जो मिली है, उनकी जो एक्सपीरियंसेस है, उन्होंने जो काउंसलिंग किया, एक अद्भुत एक कंपाइलेशन किया है इस बुक के अंदर। एंड आप जब इसको सोल लेवल में इस चीज को पढ़ने की कोशिश करेंगे, यू विल फील अ वाओ इफेक्ट। सो दैट इज व्हाट आई एट द मोमेंट, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड अबाउट इट, आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस कन्वर्सेशन व्हिच वी हैव डन। थैंक यू सो मच मनवीर फॉर कमिंग इन माय शो द सत्या शो, जिसकी कोशिश हमेशा रहती है कि उन लोगों को ढूंढ के निकाले जो कुछ अद्भुत काम कर रहे हैं, who will shake up the foundation in the coming time of India, and probably I feel uh, for the whole globe, because at this moment जो global scenario बन रहा है, I think जिस तरह की सिचुएशन आने वाली है, जो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो न्यूज चैनल्स प्रेडिक्ट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिस्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आई थिंक इस टाइम की सिचुएशन में दिस बुक इज ए मस्ट 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 रीड। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, थोड़ा सा टाइम निकालिए, इस बुक को पढ़िए, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू, एंड आप अपनी फीडबैक भेजिए, सो दैट वी आर कमिंग अप विथ लॉट ऑफ things around this book. We are trying to build an ecosystem around this book. We are trying to build, and we are also, I think Manvir will answer that. Manvir is taking a lot of workshops all across India, and also in Delhi and Ranchi and all. So अगर आपके पास कोई भी चीजें हैं, आपके पास, you wanted to have a workshop, you wanted to connect Manvir, because Manvir has tons of experience. So अगर आप मनवीर के साथ connect करना चाहोगे, so you're most welcome, and please you can write a message in wherever you are seeing, which platform you're seeing. If you are seeing in Facebook, you can directly DM me. If you're seeing through YouTube, you can give your comments, and also our contacts are there in the website. So you feel free, because I'm sure Manveer has changed many times, because I have seen myself. मैंने उसको देखा है जब हमारी इवेंट लॉन्च हुई थी, her the students which she counseled, they came on the show, and the way they explained, आप अगर वेबसाइट्स में भी जाएंगे तो उसके अंदर सारी चीजें हम दे रहे हैं धीरे धीरे करके, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो जो भी हम बोल रहे हैं, वी आर टेलिंग यू द ट्रुथ। सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी एक्साइटेड, एंड प्रोबेबली ये interview is not enough, so we will keep on talking to Manveer as and when things fall in place. And Manveer, we are about to close this interview for this first interview. Anything you wanted to say to your audience, to our audience? Any personal message you want to do? The only message what I would say is accept yourself the way you are. अगर आप अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करोगे जिस तरीके से आप हो, तो दुनिया आपको क्यों एक्सेप्ट करेगी? So before being accepted by others, accept yourself. ग्रेट ग्रेट वंडरफुल, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने पावर्स को समझें, आप कौन हो। एंड ये बुक इज ऑल अबाउट इट, ट्रू और फॉल्स इज ऑल अबाउट इट, यू फाइंड who is the true one, because आधी से ज्यादा मुझे मतलब मेजर ऑफ द प्रॉब्लम्स आर कमिंग बिकॉज हम इस फॉल्स आई को अपना मान लेते हैं, और जो ट्रू, जो सच्चा मैं हूं, उसको हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं, बिकॉज ऑफ वॉट एवर इट इज, द इमेज कॉन्शियसनेस, ट्रस्ट इश्यू, लोग क्या कहेंगे। सो ऑल दिस थिंग्स विल कम. So I think this was a very wonderful take, Manvir. I also, though I know many things about the book, but when I speak to you, when I hear you speaking to the people, when I see you talking to others, I even get more insights about many things that can be changed in us. So thank you so much, Manvir, for coming in my show, Satya Show, and I look forward to you for some
more interaction, for some more conversation, so that this definitely can impact a lot of souls and change their life. Thank you so much for this. Thank you so much, sir. Thank you.